Today we are discussing about one of the topic. There's a grammar. It's a intermediate second year, second language Hindi. In previous class we are discussed about the same topic in the letter writing. The letter writings, how many kinds of letters, what are they, what are the models of the letters, all are the discussion in that previous class. Now the next item of the grammar for the standard of intermediate second year. Second thing is word division. It's called as a Hindi Sandhi Vichhed. It's containing for 5 marks. Out of 8, if you attempt any 5, each containing 1 mark, you are getting 5 marks. Out of 8, any 5, here 5 into 1 is equal to 5 marks. For as a part B. Okay, the question number 12th one. Question number 12. Right. Out of 8 attempt any 5 each containing 1 mark for 5 marks. This topic is containing 5 marks. So in this topic, what is called the Sandhi Vichhed means word division. How to divide the sensible word, can divide in 2 parts here. So in what base we should be divided? So how many kinds of the word division means the Sandhi Vichhed, what are they, and what are the subparts in that Sandhi Vichhed? All that information we are learned in this part. So first of all, the definition of the word division, that's called as a Sandhi Vichhed. Sandhi शब्द संस्कृत के समधि से बना है. Mean this word is taken from the Sanskrit language. That word is the form of sandhi. Sandhi in English, Sanskrit, it means some plus dhi. Here some plus dhi is called as a sandhi. So जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल या योग. समधि in Sanskrit is called as a male or yog, means the total or grand. So this word is taken from Sanskrit language. The word term is sandhi. The sandhi is divided the form of sam plus dhi. Samdhi, but as pronunciation sandhi. What the mean of that means male or yog. Male means gathering or the yog means totaling. So the sandhi word is taken from the language Sanskrit. The Sanskrit word is sandhi. The sandhi can form of the sam plus dhi. The meaning of the sandhi is मेल और योग मीन्स टोटल और गैदरिंग. तो संधि में 2 वाक्यों या शब्दों का मेल नहीं होता, बल्कि केवल वर्णों या अक्षरों का मेल होता है. Here's one of the definitions given, but the clarity of that sandhi means is not the gathering of the 2 sentences or words in the word division. बट यह बल्कि केवल वर्णों या अक्षरों का, या वर्ण मीन्स लेटर और अक्षर मीन्स वर्ड मीन्स मेल होता है. मीन्स द वर्ड डिविजन इज द फॉर्म ऑफ द नॉट ए सेंटेंस 2 sentences but here letter or words, gathering of the letter or words only. So जिसमें 2 अक्षर में मिलकर तीसरे अक्षर का बदल जाते हैं, दूसरे अक्षर का बदल जाते हैं. मीन्स द फॉर्म ऑफ द 2 words is and make another form. मीन्स तीसरे अक्षर का, अक्षर मीन जिसका
क्षर नहीं होता है उसको अक्षर कहते हैं। तो इस प्रकार से दो वर्णों या अक्षरों का समूह ही संधि होता है। वो दो अक्षरों का मिल ही तीसरे अक्षर का बदल जाना ये संधि का रूप होता है। मीन्स दो वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार ही संधि है। दिस इज द परिभाषा। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन ऑफ द संधि, है ना। द दो वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले परिवर्तन मीन्स चेंजेस द विकार ही संधि है। द डिफरेंस ऑफ द टू डिफरेंट वर्ड्स मीन one sensible word can divide it into two sensible words is known as the sandhi, word division. So this is called as like example dik plus gaj. Diggaj is one of the word. Diggaj is that word divided in dik means direction and area. Gaj means elephant. The two sensible one of the sensible word is a diggaj. Is can divided two sensible words. This is one of the dik plus another one is gaj. Dik plus gaj, diggaj. Here is ka, here is ga, but as per the pronunciation here make the form of the ga. Means here the two letters are words are forming of the change as a new word or letter here. So like here example dik plus gaj, dik gaj नहीं diggaj. दिक प्लस गज दिक गज नहीं बल्कि दिग्गज का रूप यह बन जाता है। निहि प्लस रोग यह विसर्ग रूप में बताया। निहि मीन्स इन संस्कृत निहि का माने नहीं, अने रोग माने इज अ डिसीज। ओके, रोग बीमारी। निहि प्लस रोग निरोग, जिसको हम निरोग का माने जिसमें कोई बीमारी नहीं है उसको निरोग कहते हैं। यहाँ पर निहि प्लस रोग से बना है निरोग। ओके, इस प्रकार शिव प्लस आलय शिवालय। शिव के भगवान लॉर्ड गॉड। ओके, शिवा लॉर्ड शिवा एंड आलय मीन्स टेम्पल। two different sensible words are together and here they make a new form of the word means Shivalaya, the temple of Lord Shiva. Means Shiva, Lord Shiva and the temple both are form of the two sensible word as a Shivalaya means Shiva temple, Lord Shiva's temple. So this is the here example of the Sandhi Vichhed. Now you come to the point here how many kinds of Sandhi Vichhed, word division can divide into three ways. The first one is Swar Sandhi. Swar means vowel. Vowels. Next Vyanjan as per consonant. As a Visarga means Visarga as a what one? Visarga group means group में क्या बताना? हाँ, here explanation of both words using in both Visarga Rupa. Explaining of explain of both vowel and consonants. हाँ, बहुत मैंने विसर्ग रूप में यार नहीं का रूप होता है, ये विसर्ग रूप है यानी द्वितीय रूप में लेने वाला। जैसे एग्जाम्पल लाइक दिस वन
सो इस प्रकार से संधि के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार की संधियां देखी जाती हैं, एक स्वर संधि, विसर्ग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि विच्छेद के अंतर्गत यानी तीन प्रकार का मान्यता है। वो एक है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब यहाँ पर ये देखना है स्वर संधि को पहचान कैसी होती है। मीन हाउ टू यू आर प्रोनाउंस द डेफिनेशन ऑफ द वावेल डिवाइडेशन। व्हाट डिवाइडेशन मीन्स दो स्वरों के मेल से अर्थात स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर इसको क्या होने वाले परिवर्तन ही विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर का स्वर के साथ मीन वॉवेल टू वॉवेल। जैसे देख आ हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए विश्व ओ का रूप होता है आले के, आ के साथ आ जुड़ने पर आ का विसर्ग रूप हुआ है ना। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, वॉवेल के साथ वॉवेल साउंड, द एंड ऑफ द वर्ड विच साउंड प्रोनाउंसिएशन विच साउंड इज गिवन हियर एज a vowel sound. So then another second words first words last letter and second words first letter, both are the vowel sounds. So it's creating of that vowel संधि विच्छेद। स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे उसमें होकर जो परिवर्तन होता है तो उसको स्वर संधि के रूप में बताते हैं। जैसे बताया सूर्य प्लस उदय, सूर्य उ का रूप होता है, उदय उ के साथ उ का रूप हुआ है सूर्योदय, सूर्योदय। और यहाँ पे प्रति ई का रूप हुआ है। और यहाँ पर एक आ से लेकर आई तक क्या होते हैं, स्वर कहे जाते हैं। अक्षर ये 11 है, ये स्वर अक्षर। ये इस 11 में किसी भी स्वर अक्षर के साथ स्वर अक्षर का जो समापन होता है, में शब्द का समापन का पहला शब्द का अंतिम वाला स्वर और दूसरे शब्द का पहला वाला स्वर, जो दोनों अक्षर स्वर के संबंधी होते हैं तो उसको स्वर संधि का विच्छेद रूप कहा जाता है यानी माना जाता है। इस प्रकार से स्वर संधि के 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि में कितने प्रकार बताएं? 5 प्रकार के बताए गए। जैसे यहाँ पर जो देखा गया, एक है दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे बताया सूर्योदय, सूर्योदय है ना, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, शिवालय, शिव प्लस आलय। इस प्रकार से सवर्ण दीर्घ जो होता है मेन दोनों शब्दों का स्वर शब्दों का योग जुड़कर आकारांत में परिवर्तन जो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। उस प्रकार गुण संधि, वृद्धि संधि यानी यण संधि है ना, और उस प्रकार अंतिम वाले आयादि संधि। इस प्रकार से ये 5 प्रकार जो होते हैं वो स्वर संधि के अंतर्गत माने जाते हैं। माने स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। जैसे संधि के भेद के अंतर्गत जब देखा गया, प्रकार या भेद भी बताया जाता है, इसी को टर्म भेद कितने हैं, वावेल साउंड, वावेल and here consonant sounds and visarga means explaining both of that visarga। मैंने यहाँ पर दोनों रूप बताया गया। इस प्रकार से 3 प्रकार में से यानी पहला जो स्वर संधि का है उसकी पहचान कैसे की जाती है, हाउ टू आइडेंटिफाई द वावेल एंड व्हाट डिवाइडेशन मीन्स। The first 2 terms of 2 separate new 2 words are there, 2 sensible words are form of the new create a new word means 2 भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द का समूह या मेल योग जो होता है एक संधि रूप शब्द का एक सार्थक शब्द का विजन होता है, माने परिवर्तन होता है। यानी अर्थात क्या बताया गया, एक सार्थक शब्द को ए वन ऑफ द सेंसिबल वर्ड कैन डिवाइडेड इनटू 2 सेंसिबल वर्ड्स इज नोन एज वर्ड डिवाइडेशन। बोथ आर द कंडीशन इज one of the which word you are taken, that's called as a non-word sensible word. That sensible word can be divided into
your two sensible words. ओके, एक सार्थक शब्द को दो अर्थपूर्ण शब्दों में विभाजन करना ही संधि का रूप होता है। उन संधियों के अंतर्गत पहला शब्द का अंतिम वाला अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, दोनों रूप में अगर स्वर रूप होते हैं तो उसको स्वर संधि का रूप बताने चाहिए, है ना। इस प्रकार से इस अंतर में संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं और संधि की परिभाषा क्या है, संधि के उदाहरण देखें और संधि के प्रकार भेदों के अंतर्गत पहला वाला भेद जो होता है स्वर संधि के अंतर्गत उसकी परिभाषा और उसके बाद उसका उदाहरण। इस प्रकार स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, इन प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से हैं, ये सारा विषय के बारे में जानकारी की गई। ओके प्रिय छात्रगण, यहाँ द्वितीय भाषा हिंदी द्वितीय भाषा हिंदी द्वितीय वर्ष के लिए जो व्याकरण का अंश देखे गया, तो पिछले अंतर में हमने व्याकरण अंशों में जो 6 अंश दिए जाते हैं परीक्षा के अंतर्गत, उन 6 विषयों में पहला जो विषय जो होता है वो पत्र लेखन है। पत्र लेखन के अंतर्गत कितने प्रकार हैं, पत्र लेखन की पद्धति, लिखने की पद्धतियाँ किस पद्धति से इन पत्र को लिखा जाता है और पत्र लेखन का परिभाषा, उसके प्रकार, उसके नमूने देखे गए। अब इस अंतर में व्याकरण से संबंधी भाग नंबर 2 यानी इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे 12 वाला दे है। तो यहाँ पर व्याकरण में क्या बताया गया, व्याकरण जो होता है, व्याकरण में मैंने 11वां क्वेश्चन से लेकर 16 क्वेश्चन तक कुल मिलाकर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न, इसमें 11 वाला प्रश्न जो होता है वो पत्र लेखन होता है, पत्र लेखन, और दूसरा होता है 12 वाला क्वेश्चन जो होता है वो संधि विच्छेद होता है, संधि विच्छेद। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर संधि विच्छेद में संधि शब्द किस शब्द से बना है, यानी किस भाषा, संस्कृत भाषा से बना हुआ जो शब्द संधि, ये संधि 2 शब्दों से जुड़ा है, सम प्लस धी से, और ये दोनों का अर्थ जो बताया गया, जिसका संधि शब्द का सार्थक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग। मेल का माने गैदरिंग, यानी यहाँ पर योग का माने टोटल वर्ड। नहीं, संधि में 2 वाक्यों या शब्दों का मेल नहीं होता, इज नॉट ए द फॉर्म ऑफ द 2 sentences, but you can be divided into 2 sensible words or letters. Okay, it's a depending, yeah, dividing is depends upon the not a sentence, but only the letters are the words only। मैंने इसका अर्थ जो होता है केवल वर्णों या अक्षरों का मेल होता है ना, वाक्य और शब्दों का, बल्कि क्या बताया, वर्ण मीन्स लेटर और अक्षरों का मीन्स वर्ड का मेल होता है। द गैदरिंग ऑफ द लेटर एंड द लेटर आर द वर्ड्स इज नॉट ए सेंटेंसेस। सो जिसमें 2 अक्षर मिलकर तीसरे अक्षर का बदल जाते हैं, तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। मीन द 2 words at the end of that first letter and starting of the second letter is may be gathered here and they change the as a new word or letter, right? तो परिवर्तन हो जाता है। जैसे परिभाषा में देखा गया, एज ए डेफिनेशन इस 2 वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार ही संधि है। कल की परीक्षा में आपको परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पे इज नॉट आस्किंग दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ड्यूरेशन इन योर एग्जामिनेशन, but only just you are given the information for what is the definition of the sandhi vichhed।
Okay, but here for our identification, our understanding only. Here again example, dik plus gaj, then diggaj. See here, it is diggaj is one of the sensible word, and this word can be divided into the dik and gaj. Means these are two sensible words are there, and here change modify as a new word term. Yeah, the two terms you can change the new word. Okay, nihi plus rog. Nihi means नहीं, और रोग का माने या बीमारी. इस प्रकार से निरोग का माने जिसमें बीमारी नहीं है, ऐसे वाला अर्थ का रूप हुआ है निरोग. इस प्रकार शिव प्लस आलय. शिव का माने लॉर्ड गॉड एंड आलय मीन्स टेम्पल, यानी शिवालय मीन्स द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा. स्वर संधि. इस प्रकार से संधि के प्रकार में जब देखे गए तो उसके जो भेद जैसे इसी को माना गया, स्वर के संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन तीन प्रकार के संधियां हैं. तो पहले वाला क्या बताया गया? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. इस प्रकार में संधि, स्वर संधि का जो परिभाषा, मीन हाउ टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट टर्म ऑफ स्वर संधि मीन्स दो स्वरों के मेल से. यू आर ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर हाउ टू आइडेंटिफाई द लेटर वर्ड. मीन इन योर एग्जामिनेशन इज नॉट आस्किंग द नेम ऑफ द योर संधि विच्छेद, जस्ट यू आर गिवन द सेंसिबल वर्ड. एक शब्द को दिया जाता है, उसका संधि विच्छेद मात्र करना है, संधि का नाम नहीं पूछा जाएगा. ये वाला विषय जो होता है आपको जानकारी के मात्र ही दी जा रही है समझने के लिए. दो स्वरों के मेल से अर्थात स्वर का અને स्वर के साथ मेल होने पर परिवर्तन जो हुआ है उसको स्वर संधि कहा जाता है. जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय. जैसे प्रति प्लस एक. प्रति का माने देखिए, प्रति का माने क्या है? अंतिम में ई का उच्चारण है, ई. प्रति माने ई, और यहाँ पे ए, यहाँ पे ई और ए दोनों मिलके क्या होता है? एक. त्ये, ता प्लस ए का रूप होता है ना, प्रत्येक. और सूर्य ओ प्लस उदय ओ, यहाँ पे ओ के ओ का रूप हुआ है. ओके, यहाँ पर परिवर्तन होना है. तो इस प्रकार से एक शब्द के दो सार्थक शब्द में दो स्वरों का मेल होकर में दूसरे शब्द के अन्य उच्चारण में परिवर्तन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं. फिर स्वर संधि के अंतर्गत मैंने कितने 5 प्रकार की भेद देखे जाते हैं. जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि. इस प्रकार से 5 प्रकारों के जो स्वर संधि के अंतर्गत भेद देखे गए हैं. इस प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों यहाँ पर इसके अंतर्गत जानकारी होगी. ओके, धन्यवाद.